Hello everyone. So today I'll be discussing about goodwill जो है AS24. ओके, AS24. तो आज मैं गुडविल ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जैसे कि you don't know anything about goodwill. Okay, you don't know anything about goodwill, and we'll be starting with a new a new era of goodwill, right? Okay, so firstly we'll be discussing about the meaning of goodwill, and as there is no definition of goodwill, like there is no specific definition about the goodwill, but we'll be seeing the meaning of goodwill. Okay, we'll be understanding the meaning of goodwill, and we'll be discussing the concept. Okay, we'll be discussing the concept and the goodwill in various departments, or in various sections, right? So like admission, retirement, death, and dissolution. Usually dissolution is not considered in goodwill, like but we'll be seeing the goodwill in various sections, right? Okay, what are you telling, what are you what are you telling in admission how the goodwill will be calculated, and in retirement how the goodwill will be calculated? Like I'll be discussing this thing. Okay, right sir. Okay, so I'll just shift my this thing. Okay, yes, हाँ जी ठीक है. तो I'll open my OneNote, right? So okay. So right, good is will. Okay, good will. AS26. AS26. So what is this AS26, sir? Right, AS26. So what is this AS26? You know, AS regards to AS regards to accounting standard. Accounting standards. Okay, so what is accounting standard? Accounting standard means what? So accounting standards are the standards, or are the principles and rules or regulations given by an authority. So which authority? IFRS. Okay, IFRS, or that is International Financial Reporting Systems. Okay, or INDAS, Indian Accounting Systems. Okay, right? So in accounting standards is a principle given by IFRS. And so what is 26? There are many principles, or there are many standards in which goodwill is AS 26th. Okay, goodwill is 26th AS. Okay, right sir. Okay, हाँ जी. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमको पता चल गया, और 26 भी हमको पता चल गया, लेकिन अभी आते हैं गुडविल पर. ओके, गुडविल पर, राइट. ओके सर. सो गुडविल, look here, in short I have to finish this video within 20 minutes, or else you'll get bored. Okay, so goodwill means what? Goodwill, पहले मैं मीनिंग लिखता हूँ. ओके, बाद में उसको ये कर लेंगे क्या, बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट? ओके जी. गुडविल is the future earning capacity. Future earning capacity of an enterprise, in, sorry, not in, by continuing same class of business.
same class of business. Okay, goodwill is the future earning capacity of an enterprise by continuing the same class of business. सर मैं तो बहुत एवरेज बच्चा हूँ, मैं तो इतना इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता, इतना इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता, चलो बोल देता हूँ. गुडविल इज द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी. इसको लगा डालो लिपस्टिक येलो कलर वाला, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी. Okay, for example, look here, usually I give this example in regular class with my students. Usually my this video will be watching by my students self. So let's say हमारे यहाँ एक होटल है, ठीक है ना, हमारे यहाँ एक होटल है. वो होटल ऐसा तो नहीं दिखता वो होटल, ठीक है ना, वो उसका नाम है प्रेसिडेंट, होटल प्रेसिडेंट, राइट. ओके जी, ओक होटल प्रेसिडेंट, राइट सर. And this hotel is considered, like it's not considered, it's deemed that it's a 5-star hotel. Five-star hotel, it's a 5-star hotel, right? ओके जी. सुनो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना. इसके ठीक सामने, just in front of it, okay, there is a ढाबा. Oh my god, ढाबा. इसको थोड़ा सा मॉडर्न नहीं बनाना है, ठीक है ना. यहाँ पे एक क्रैक है, यहाँ पे एक क्रैक है, देयर इज अ क्रैक ओवर हियर, हियर. ओके, इट्स अ ढाबा, राइट. ओके सर, इट्स अ ढाबा. ओके, हाँ, इसको मत ये मत बोलो कि 5-स्टार ढाबा है, ठीक है. इट्स अ ढाबा, राइट. ओके, सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड झंडू. झंडू, ठीक है. झंडू wants to eat idli. Okay, झंडू wants to eat idli. Firstly, he'll go to this dhaba. Okay, firstly he'll go to this dhaba as he's like me only. Okay, पहले हम धाबा को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना. He wants to eat idli. Okay, इडली, इडली खाएगी नहीं, सिर्फ जाएगी इडली. एंड इडली, आई डोंट नो इडली स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना. इडली, it costs him 25 rupees plus tea, it costed him 10 rupees. Let's say 10 rupees. एक तो 5 रुपए है ना हमारे यहाँ, ठीक है ना. 30 rupees. Can I not say this idli plus tea had him 30 rupees, costed him 30 rupees, right? Where sir? In dhaba. But in the next day he went to this hotel. क्यों गया रे बाप रे, इसका तो पॉकेट ढीला हो गया है ना. झंडू वेंट प्रेसिडेंट होटल, राइट. ही ऑर्डर्ड इडली एंड टी. दिस इज ढाबा, ढाबा का बिल है ये है प्रेसिडेंट होटल का बिल. भाई साहब, मतलब भाई साहब, प्रेसिडेंट होटल का बिल. वेटर ने हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कम इन प्लीज कम इन. अब क्या लेना चाहते हैं सर? इडली लेना चाहता हूँ सर. इडली, इट जस्ट कॉस्ट यू 80 रुपीज सर, इट जस्ट कॉस्ट यू 80 रुपीज. वाह 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 वाह. एक इडली मतलब एक प्लेट इडली 80 रुपीज. वाह रे वाह. और टी तो अरे बाप रे, टी तो उसको 40 रुपीज में मिल गया भाई साहब. उसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला. 180 प्लस 40 हैड 120. भाई साहब, भाई when I was eating in dhaba, it cost me सिर्फ 30 rupees and it's costing me 120 rupees when I'm eating in President Hotel. Why is this sir? Why President Hotel is asking so much money where idli is white color? Okay, idli is white color in dhaba as well as in President Hotel. Even tea, चाय भी ब्राउन कलर रहता है भाई. हमारे यहाँ ब्राउन कलर, ढाबा में भी ब्राउन कलर रहेगा, प्रेसिडेंट होटल में ब्राउन कलर रहेगा. ये ऐसा नहीं थी कि इडली गोल्ड प्लेटेड है, चाय गोल्ड प्लेटेड है, ऐसा तो नहीं है ना. सो 120 रुपीज. लुक हियर, द रीजन वाई प्रेसिडेंट होटल इज आस्किंग सो मच ऑफ मनी is because of his goodwill. Sir, okay, थोड़ा सा मतलब I'm getting some knowledge about goodwill. Okay, can you please elaborate
I'll elaborate now. Look here. This dhaba, the selling price of धाबा होटल, धाबा ही, मैं धाबा को ही सेल कर रहा हूं, इडली नहीं, मैं पूरा धाबा को सेल कर रहा हूं. धाबा, सेलिंग प्राइस ऑफ धाबा इज लेट्स से 3 लाख रुपीज. 3 लाख में क्या क्या आएगा भाई? 3 लाख में आएगा, ओनर नहीं आएगा, ओनर को खरीदने रहो, ठीक है? कुछ भी मत सोचो यार, कुछ भी मत सोचो. हाँ ठीक है, बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग आएगा, चेयर्स आएंगे, राइट? चेयर्स आएंगे, किचन, किचन भी ऑब्वियसली आएगा ना, किचन आएगा, राइट? टेबल्स आएंगे, राइट? प्लेट्स वगैरह सब कुछ आएगा ना, राइट? ओके जी, ये आया 3 लाख रुपीज में. मैं यहां पे क्या बोलता हूं, इस प्रेसिडेंट होटल भाई साहब का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रेसिडेंट होटल would be 1, नहीं, not 1, अरे प्रेसिडेंट होटल है भाई, 3 करोड़ 45 लाख रुपीज. जीरोस कम पड़ रहे हैं भाई. 3 करोड़ 45 लाख रुपीज. सर इतना क्यों? Why this much? Look here, I'm not telling that 3 crore 45 lakh rupees is the main capital or it is the initial capital of the entrepreneur. No. पहले मान लेते हैं this is the year 2023. हम अभी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, ठीक है ना? We are coming into the concept. Please focus. This amount is of year 2023. Okay. This hotel was started back in 2000s, right? Okay ji, 2000 year, this is year 2000. The initial capital was just 40 lakh rupees, let's say. Okay, just 40 lakh rupees. Look here sir, जो 40,000 था उसमें बिल्डिंग भी आ गया, उसमें किचन भी आ गया, उसमें टेबल कुर्सी सब कुछ आ गया 40 लाख में. Then why the hell are you asking 3 crore 45 lakh now? मतलब ऐसा क्या हुआ 2023 में, 23 इयर्स के बाद क्या हुआ जैसे तू 3 करोड़ मांग रहा है ज्यादा, राइट? तो देखो क्या हुआ इस 23 इयर्स में, ये जो 23 इयर्स का गैप था ना, देयर द होटल अर्नड गुडविल. ओके सर, ओके. व्हाट इज गुडविल राइट नाउ? लुक हियर, उस होटल का देखो, compare idli's quality, okay, dhaba's idli quality, and compare the present hotel's idli quality, compare dhaba's chai quality and compare present hotel's quality, you get a hell of difference. Okay, you will get a hell of difference. And the क्या बोलते हैं उसको, लड़कियां मतलब सेल्फी खींचते हैं ना, स्नैप डालते हैं ना, वो सब क्यों? क्योंकि दी डेकोरेशन ऑफ द होटल्स, ओके, डेकोरेशन ऑफ द होटल्स एंड धाबा का डेकोरेशन कैसा रहता है भाई? चिप्पाड़ है वो पूरा, है ना, मतलब पूरा कूड़ादान है वहां पे. प्रेसिडेंट होटल ऐसा नहीं है. प्रेसिडेंट होटल आते ही लड़के हैं सिर्फ, तो लड़के आती है, स्नैप डालती है, कुछ खाते हुए तो नहीं, स्नैप डालते जाते हैं, है ना, राइट? सो वो ऐसे होके उसका गुडविल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि माउथ टू माउथ, पीपल टू पीपल, इट इज स्प्रेडिंग ओवर एवरीवेयर. सबको पता चल रहा है कि हाँ यार इसका फूड क्वालिटी बढ़िया है बहुत, इसका क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेशन को बोलते हैं, मतलब एंड इट्स द डिजाइनिंग ऑफ द होटल इज वेरी फैंटास्टिक एंड इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स पीपल टूवर्ड्स इट, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द सर्विस ऑफ द क्वालिटी, because of the quality of the service, it increased its power. Power को क्या बोलते हैं? It's called goodwill, because that power is not being seen by anyone. That is why it is called intangible asset. Okay, it is an intangible asset. तुम्हारे टीचर ऐसे पढ़ाते होंगे बच्चों, intangible means we cannot touch, see or feel. They never teach you what is the actual meaning of intangible asset, and I have taught you the actual meaning of intangible asset. Okay, right sir, okay जी,
क्या मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, इज द नो नॉट हियर, गुडविल is also considered as intangible assets. ओके इसको भी लगा डालो एक येलो कलर का लिपस्टिक. ओके येलो कलर का लिपस्टिक. राइट ओके राइट हमको पता चल गया क्या हुआ है करके. राइट लुक हियर हमको पता चला गुडविल क्या है अभी. ठीक है ना. ओके जी. लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट होटल्स 2000 ईयर उसका सेल्स था लेट्स से 2,50,000. it's very less I mean to say but समझ लेते ना भाई. it's for example right 2005 its sales went up to 8 lakh. oh my god 8 lakh पूरा एकदम से 250 से 8 lakh. right why because of its goodwill obviously. 2010 भाई साहब अरे मतलब क्या ही बोलूं मैं 22 लाख 5 साल में एकदम बढ़िया. राइट 2020 जंप कर लेता ना लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा. 2020 में क्या हुआ भाई. 2020 में उसका गया 45 लाख रुपीस भाई साहब. 45 लाख रुपीस. राइट ओके जी. 2023 सेल्स कितना हुआ 85 lakh. राइट 85 lakh. ऑल दीज प्लीज ऑल दीज फिगर्स आर इमेजिनरी. ऐसा मत बोलो ऐसा कैसा हुआ. नहीं पूरा इमेजिनरी है. ठीक है ना. ओके नाउ लुक प्रेसिडेंट होटल का क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छा है. राइट क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू ढाबा. एंड इट यूजुअली व्हाट इट सेल्स फूड ही सेल करता है ना. So I am now eligible to say and you are eligible to think or understand that 2000 से 2023 तक he is continuing his same class of business. class of business क्या था उसका. होटल सर्विस, होटल मैनेजमेंट, लॉज. राइट जो लॉज आप समझ रहे हो वो नहीं. ठीक है ना. राइट ओके एंटरप्राइज में कंटिन्यू अरे बाप रे क्या ही हुआ. कंटिन्यूइंग द सेम क्लास ऑफ बिजनेस. क्या समझ में आया. ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज क्या था हमारे एग्जाम्पल में होटल था. राइट होटल था. राइट सो पता चल गया क्या है गुडविल करके. राइट सर ओके. सो गुडविल आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे. राइट आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे. राइट ओके जी. इन 18 minutes आई वॉज एलिजिबल टू क्या बोलते उसको टू explain you what is the meaning of goodwill. Wait a second, just a second. I'll just yes, just a second guys. ओके जी. ओके राइट सो थोड़ा सा ना मतलब कुछ काम आया था. राइट ओके सो आते हमारे मेन मुद्दे पे. राइट हम यहाँ पे क्या करने आए हैं. राइट गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स. goodwill in partnership accounts. Right हाँ जी ठीक है. गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स. इसको भी लगा डालो एक बढ़िया सा लिपस्टिक. लड़कियां पिंक कलर लिपस्टिक डालते हैं, हम लड़के येलो कलर लिपस्टिक डालते हैं. राइट
ओके, तो राइट, सब पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, सो पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दैट्स इट। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। एक सेकेंड, आई जस्ट डू वन थिंग। हाँ जी, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, right, treatment of goodwill in partnership accounts. Okay, right, so in these three case scenarios ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। ओके जी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। राइट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, पहले एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड, दिस थिंग, बैकग्राउंड जो बजा रहे हो, मतलब जो आप नहीं समझ रहे वो नहीं, वो कुछ ड्रम्स बजा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। ओके जी, ऑलवेज गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और शेयर भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अरे ये लिखा तो ये क्यों लिखना, इन दी सैक्रिफाइस पूरा लिख लेते हैं ना, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है भाई, समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा। लगा डालो एक मस्कारा, ठीक है ना। सैक्रिफाइस रेशियो, एक काम कर लेता हूँ, पूरा खिड़की बंद कर लेता हूँ। ओके सर, समझ में आया, सैक्रिफाइस रेशियो, राइट। ओके जी, लुक हियर, always goodwill is distributed in the sacrifice ratio. Okay, right, next one। मैं यहाँ पे please I'm not here to explain you what is sacrifice ratio। okay, if you want, so what do you mean by sacrifice ratio, what do you mean by NPSR, what do you mean by PSR, or what do you mean by gain ratio, please comment down below, okay, or share with your friends। if someone right, if someone requests me to do it, I'll do it, I'll definitely do it, okay, right। always goodwill is distributed in this sacrifice ratio, okay, or when goodwill is bought in cash by whom, by new partner, obviously by new partner, bought in by cash, by cash, by in cash by new partner, okay, by cash in partner। just a second guys, just a second, चार्ज खत्म होने वाला है लैपटॉप का, I'll just do one thing।
राइट, क्या बोल रहा था? हाँ, when goodwill is bought in cash by new partner. Okay, I'll just do one thing. I'll just make notes. Okay, I'll just make notes so that you can either copy it down or take a screenshot. Okay, take a screenshot. All right. Firstly, uh, please प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो. Credit the amount, which amount, sir? Goodwill amount bought in by, एक सेकेंड, goodwill amount by new partner. Okay, credit the amount in partners capital account. In partners capital account. Whose capital account, sir? New partners capital account. New partner cap account. राइट. न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का उसका कॉलम रहता है ना, उस वो कॉलम में यू हैव टू add that amount. Okay, right, next one. This is very crucial one, very crucial. बना लो डांगर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड वन, आफ्टर फर्स्ट, मतलब ये आफ्टर फर्स्ट, ठीक है ना, आफ्टर फर्स्ट स्टेप. ओके, credit the goodwill amount to old partners capital account in sacrifice ratio. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. credit the goodwill amount to old partners capital account. Okay, old partners capital account, this is very important. Look here, sir, ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है. क्यों? क्योंकि दो अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं एक ही बार में. दो अमाउंट कौन से? फर्स्ट स्टेप वाज crediting the amount of new partners goodwill. Okay, bought in goodwill, and the same brought in goodwill of new partners we are crediting in old partners capital account. Can I not say here I am doing same amount two times credit? Okay, तो हम अभी क्या करना पड़ेगा? थर्ड वन सुनो यहाँ पे. नाउ as we have debited, sorry, as we have credited the same goodwill amount two times, that is step 1 plus step 2, right? Step 1 and step 2, we have to debit the goodwill of new partners in his capital account.
सर कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, कुछ भी समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। राइट, डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया। राइट, इसका लॉजिक तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ भाई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ लॉजिक देने के लिए। राइट, जो कॉलेज में आपको कोई नहीं देता। लुक हियर, लुक हियर, ये है पांडु, ये है ए जो आप समझ रहे हो वो नहीं, ये झंडू है, झंडू। राइट, दे आर पार्टनर्स इन रेशियो 2:1। समझ लेते हैं यार, 2:1। राइट, ओके जी, 2:1। राइट, so they are running their business, they are running their business from since 20 years, since 20 years। as you know, गुडविल भी, गुडविल तो अभी बहुत हुआ रहेगा। राइट, गुडविल तो अभी बहुत हुआ रहेगा। लेट्स से ईयर 2000 में उनका प्रॉफिट था 5 लाख रुपीस। ओके, 5 लाख रुपीस मतलब एक बंदे को, झंडू को मिलता था 250, सॉरी नॉट 250, एक काम कर लेते हैं, इसको दोनों को 1:1 बना लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इजी रहेंगे। झंडू को मिलते थे 250, इसको भी मिलता है 250, मिलता था 250। राइट, तो 2023 में क्या हुआ, एक बंदा आया, भीम, यूपीआई नहीं, ओके भीम। राइट, he told I want to join you people's business, okay, I'll bring cash of 20 lakh, ओके, आई ब्रिंग कैश ऑफ 20 लाख। राइट, इस यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, एक सेकेंड। भीम आएगा 2023 में। राइट, नाउ यहाँ पे देखो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्रॉफिट है ऑब्वियसली, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ रहेगा ना, लेट्स से 40 लाख, 40 लाख। नाउ लुक हियर, झंडू, पांडु एंड भीम आएगा अभी, जेपीबी। क्यों सर, वाई भीम? बिकॉज 2023 में वो भी आ रहा है ना कैपिटल लेके, तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए। इवन भीम वांट्स प्रॉफिट, राइट, एज ही इज गिविंग कैपिटल। नाउ लुक, लेट्स से देयर रेशियो इज 1:1:1 फॉर इजी कैलकुलेशन, ओके, 1:1:1, राइट। लेट्स से I'll just do one thing, 40 divided by 3, 13.33, राइट, इसको मिलेगा 13.33, इसको भी मिलेगा 13.33, राइट, ओके जी। लुक हियर, इफ भीम वॉज नॉट देयर, अगर भीम नहीं आता, अगर भीम नहीं आता तो झंडू को कितना मिलता भैया, झंडू को मिलता 20 लाख और इसको भी मिलता 20 लाख। लेकिन भीम आया, भीम आया और भीम भी उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हैं, है ना। Because of that, this Jandu is getting 7 lakh lesser and this Pandu is getting 7 lakh lesser. And Bhim, who was not getting anything in 2000s, before 2023, he is getting 13 lakh rupees ekdam se. Right? He was getting nothing, right? Look here, he was getting nothing, zero. But he is getting, achanak se, he is getting 13 lakh rupees by coming into Jandu Pandu's business, right? Okay, ji. So, I'm asking you, why this from 5 lakh and 40 lakh, it converted 5 lakh from 40 lakh? Because of some goodwill, right? Goodwill है इसलिए तो उतना प्रॉफिट आ रहा है, राइट। लुक हियर, जो दो आदमी 2000 से लेके 2022 तक, 2022 तक दे आर वर्किंग हार्ड टू अर्न गुडविल एंड टू अर्न प्रॉफिट, सम अदर पर्सन इज कमिंग एंड अचानक से ही इज गेटिंग मोर प्रॉफिट्स, अचानक से इज गेटिंग मोर इनकम बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। देयर मतलब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल, राइट। ओल्ड पार्टनर की वजह से उसको भी मिल रहा है। ओल्ड पार्टनर की किस वजह से? ओल्ड पार्टनर की गुडविल की वजह से भीम इज ऑल्सो गेटिंग सम मनी। सो एज ओल्ड पार्टनर थिंक, एज यू एज ओल्ड पार्टनर थिंक, अरे 20 साल तक हमने जो मेहनत किया है, हमने गुडविल कमाया है, तूने कुछ भी नहीं किया तो अचानक से एकदम से 13 लाख ले रहा है भाई साहब, वाह बढ़िया। तो एक काम कर, जो हमने गुडविल कमाया है ना,
तू भी गुडविल तेरे जेब से लेके आ, ओके, तेरे जेब से लेके आ। तो वो क्या करेगा भीम, जब एडमिट करते वक्त भीम लेके आएगा सम गुडविल, लेट्स से 20 lakh, let's say 20 lakh. Now he is eligible to take this profit. Now he is eligible to take this profit. ओके, एलिजिबल मतलब अभी झंडू पांडू बोलेंगे हाँ भाई 20 लाख तो लेके आया, मतलब दे आर झंडू एंड पांडू आर कैलकुलेटिंग देयर पास्ट 20 years गुडविल with 20 lakh rupees. Okay, with 20 lakh rupees, right? Okay, sir. Okay, can I not say this 20 lakh which he is bringing is for Jhandu and Pandu? ये जो झंडू एंड पांडु का ही है ना ये 20 लाख रुपए। क्यों सर, क्योंकि अचानक से ही इज गेटिंग 13 लाख रुपीज बिकॉज ऑफ गुडविल अर्नड बाय झंडू एंड पांडु। this particular goodwill this particular goodwill this particular goodwill is should be with Jhandu and Pandu, the old partners, right? That is why Bhim shouldn't get this 20 lakh rupees in his capital account. In his capital account. Okay, ji. So whenever capital increases, we have to credit the account. Whenever we have to decrease the capital, we have to debit the account. Right, sir. Okay. So that is why I am debiting the goodwill of new partner in his capital account. पता चला? Okay जी, right sir. So I think we have a big chunk we have completed, right? A big chunk we have completed. Okay, right sir. Now this is when goodwill is bought in cash by new partner. Okay, bought in by new partner. Okay, the another segment is when goodwill is withdrawn. When goodwill is withdrawn by obviously old partners. सर किसका गुडविल? न्यू पार्टनर्स गुडविल। न्यू पार्टनर्स गुडविल। Follow the above 3 steps with ये 3 हुआ, this 4th one. Again debit the old partners capital account in the amount of goodwill in sacrifice ratio. ओके, राइट सर। सर एक एग्जाम्पल होता तो बहुत मस्त होता देख। राइट सर, एक एग्जाम्पल लेंगे। लुक हियर, एग्जाम्पल A and B are partners sharing 1:1, right? Okay. C is admitted not in hospital in partnership. Okay, C is admitted for 1/6 शेयर। ये जो दिया है ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, राइट? ओके, 1/6 शेयर जी, राइट सर। he brings capital rupees 30,000, goodwill in cash rupees
18,000, राइट, यूजुअली हाँ चलेगा 18,000 रुपीज़, ओके, राइट सर। सर यहाँ पे मैं क्या करूँ सर? ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे ना। पार्टनर कैप अकाउंट, ये ए बी सी, बी सी मतलब वो बी सी नहीं, दिस इज पार्टी का कूलर, ए बी सी, ये भी है पार्टी का कूलर, राइट, ओके। सो सम स्टेप्स as I know some steps you people by heart। यहाँ पे है ब्रॉड डाउन, यहाँ पे है कैपिटल आएंगे, राइट, यहाँ पे है जो ये मेन मुद्दा है, राइट, बाय कैश, यहाँ पे कैश क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस गुडविल, राइट, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, ऑब्वियसली ए बी तो कुछ भी नहीं ले आ रहे ना, तो सी 30,000 प्लस 18,000 इज 48,000, इसमें कैपिटल है 30,000, इसमें कैपिटल है 30,000 और गुडविल है 18,000, राइट, गुडविल 18,000, ओके, राइट। सो लुक हियर, only the goodwill amount should be credited, not capital amount। capital तो वो उसको ही belong होता है, right, okay, by C account, by C account। मैंने यहाँ पे स्टेप 2 में क्या लिखा है देखो, after first step credit the goodwill amount to all partners capital account in sacrifice ratio। whenever the sacrifice ratio is silent, we have to consider old ratio in as a sacrifice ratio, right, okay, गुड, ये है वर्किंग नोट, ठीक है ना, गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट, ओके जी। लुक हियर 18,000, एक सेकेंड मैं काम कर लेता हूँ, ए 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, बी 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, राइट, 9,000, ओके। लुक हियर, आई डू हियर, एक काम करूंगा मैं, 9,000 यहाँ पे डैश, राइट, हुआ 9,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, सी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ भैया, पर्टिकुलर कॉलम मत देखो, अमाउंट के कॉलम में देखो। यू पीपल, द स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि अरे हम लोग सी के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं कि ए बी के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, हम लोग ए बी के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, वाई, look at the amount column not on particular column, particulars is just a definition, it is just a meaning that हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। थर्ड स्टेप क्या था भैया, थर्ड स्टेप है नाउ एज वी हैव क्रेडिटेड द सेम गुडविल अमाउंट 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स कैसे, this 1 टाइम एंड this 1 टाइम, इट विल इक्वल टू 2 टाइम्स, राइट, तो 2 टाइम्स तो देखो गुडविल तो अमाउंट सिर्फ एक ही बार आ रहा है, दैट इज 18,000 रुपीज, बट वी आर क्रेडिटिंग 2 टाइम्स, इट मीन्स 18,000 प्लस 18,000, विच इज वेरी रॉन्ग, सो वी हैव टू डेबिट द कैपिटल अकाउंट, टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट। हम लोग ए और बी अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, डेबिट नहीं कर रहे हैं, वी आर डेबिटिंग सीज अकाउंट राइट नाउ, 9K, sir, why are we debiting 9K in C's account? As I have told you, this 9K or this 18K does not belongs to C, it belongs to A and B because it is the goodwill earned by the old partners in the past events, in the past years, okay, right sir, because it doesn't belong to new partner, okay, right sir, okay, so दिस इज नॉर्मल एंड एक यहाँ पे एडजस्टमेंट करके रहता है, देखो यहाँ पे यूजुअली यू पीपल गेट
adjustments, additional adjustments, goodwill was withdrawn by old partner. Obviously old partner रहेगा ना. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, to cash account. Usually they'll take the goodwill in cash account, by cash only. 9K and 9K. प्लीज यहाँ पे कुछ भी मत लिखो. सी के अकाउंट में इस दुनिया को लगता है कि सी ने कुछ भी नहीं लिया, राइट? इस दुनिया को लगता है सी ने कुछ भी नहीं लिया, इसीलिए डैश वहां पे, राइट? So with this note, I'll end up this session, right? So I think you people might have enjoyed and might have learned accounts in a different manner, right? To learn in a different manner, right? So I'll be coming up with such series of questions and concepts, right? So bye students, bye. Thank you very much for attending this session, right? Bye.